Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 17 December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for the next trading day, which will be on 18th December. Tomorrow is the weekend, Friday है, or you need to be alert, right? So far, market has been going great, and FIs have been net buyers, DI has been net sellers, and despite all odds, the market is going higher and higher every day. Well, friends, before we start Nifty analysis or Bank Nifty analysis, let me tell you that if you are new to our YouTube channel, consider subscribing to this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video in the YouTube. And also be generous to share the videos with your friends and trading communities. Friends, it takes a lot of efforts to create videos and maintain the YouTube channel. And this is being done for our trading and investing community. Our, Praj Academy and its team consistently works on creating the contents analysis and it's just to support our students and our trading community for which we stand to ensure that they learn, they earn, and they remain alert in the market, right? So my invitation, I hope, will be accepted, and you would be subscribing as well as inviting your friends and trading communities to do that same. Now let's go to the day's chart, right? It's a daily chart of Nifty and Bank Nifty, friends. And today also you can see Nifty, moved up. Bank Nifty as well as Nifty both opened gap up. But in the first 15 minutes itself, there was a selling pressure. Profit booking start hui. However, the global cues were positive, and soon after, within half an hour's time, the market started picking up. So witness the buying, and of course, Nifty touched a lifetime high again, 13,773 ka, right? Although it didn't settle there, it settled slightly below. And आज के जो main contributor थे friends, Divi's Lab, HDFC Limited, Bajaj Finance, IndusInd Bank, Shree Cements, and जो top loser थे Hindalco, Coal India, Maruti, Adani Ports, and Tata Steel. Or Nifty touched a new lifetime high, friends, but market breadth remained negative. आज सिर्फ 16 स्टॉक एडवांस हुए and 34 stocks decline हुए out of stack of 50 stocks of Nifty 50. And अगर हम देखें तो Nifty closed at 13,740 with a net gain of 58 points, making a spinning top kind of candlestick. And Bank Nifty को अगर आप देखेंगे, Bank Nifty ने भी spinning top kind of candlestick बनाई, and it closed higher than yesterday by 149 points. It closed at 30,847. हमने निफ्टी की जो आज की ट्रेडिंग रेंज कल एस्टिमेट की थी फ्रेंड्स, दैट वाज 13,500 to 13,800, and you can see that Nifty traveled within the same distance. And Bank Nifty की जो हमारी रेंज थी, that was 30,200 to 31,200, and Bank Nifty also traded within the same range. So these ranges are calculated based upon price action as well as the technical analysis. अगर हम ट्रेंड पर्सपेक्टिव से बात करें फ्रेंड्स, आज भी निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए, तो अप ट्रेंड continues and the party also continues, although the party is there only for Nifty Bank. Many of the banking stocks they are witnessing profit booking at this point of time, right? And candlestick perspective से बात करें, Nifty as well as Bank Nifty made a spinning top in a daily. And अगर हम वीकली में बात करें तो निफ्टी हैज मेड a bullish candle on a weekly basis, and बैंक निफ्टी ने हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है. सो हैंगिंग मैन पैटर्न अगर वीकेंड में अगर कल फ्राइडे भी यही मेंटेन रहता, हो सकता है कल ये और थोड़ा ऊपर होके बुलिश कैंडल बना दे, बट एज ऑफ नाउ हैंगिंग मैन पैटर्न इज कॉल्ड पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न. अगर नेक्स्ट वीक में भी ऐसा ही आपको रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है तो इन दैट केस, राइट. प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से अगर हम निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो लोअर साइड में 13,706 पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट मिलेगा 13,680 पे, थर्ड लेवल
13,650 पे एंड फोर्थ लेवल 13,600 पे। सो 13,600 डाउन साइड में इसकी रेंज हमको कल के लिए नजर आ रही है, और अगर निफ्टी बुलिश बायस के साथ में जाती है कल, तो देन यू विल सी it has got the first level of resistance at 13,773, सेकेंड लेवल मिलेगा 13,800 पे, थर्ड लेवल मिलेगा फ्रेंड्स 850 पे, एंड फोर्थ लेवल मिलेगा 13,900 पे, राइट? सो दीज आर द trading ranges for Nifty. Now let me show you how the Bank Nifty can move upside or down. अगर Bank Nifty में डाउन साइड आपको कल देखने को मिलेगी तो 30,782 will be the first support, 30,650 second support, and 30,000 1 minute friends, yeah, 30,592 third level of support, 30,500 will be the fourth level of support. And अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में जाती तो आज का हाई जो कि 30,945 का था, that will act as the first resistance. Then second resistance will come at 31,085, 31,282 is the third resistance, 31,437 is a fourth level of support. So you can jot down these levels, friend, and at the end of the day, we'll see intraday क्या trading हो सकता है Nifty and Bank Nifty में. But before that, let's look at some data points and see कि भाई data point और price action points same है या नहीं, right? So this is the option chain. Nifty has closed at 13,740. So 13,750 will be our at the money. But ये 17 दिसंबर की जो आज एक्सपायरी थी, इस एक्सपायरी को लेके हम विल टेक एक्सपायरी ऑफ 24 दिसंबर, राइट? सो नई ऑप्शन चेन स्टार्ट हो रही है कल, एंड आज काफी मार्केट वोलेटाइल रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी वीकली ऑप्शन चेन एक्सपायर होगी तो डेफिनेटली उसमें वोलेटाइल होगी, क्योंकि काफी शॉर्ट क्लोज होते हैं, राइट? तो 13,750 हमारा एट द मनी है फ्रेंड्स, और ये एट द मनी के आसपास में देखें आज बुल्स ने क्या पोजीशन बनाई, तो 13,700 पे मैक्सिमम राइट हुई है, और 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विच इज quite substantial is our support one, right? That's the position create bulls, but higher level पे 800 या 850 और 900 के लेवल पे कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है। Although 13,750 13,800 पे 2.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट राइट हुई है, राइट? सो 13,700 पे सब्सटेंशियल पुट राइटिंग नहीं है, we will not be considering that as a very strong support, but 13,600 will emerge as a support too, because यहाँ पे 7 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आए और ओवरऑल 1.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है। नाउ नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, दैट इज एट 13,500 फ्रेंड्स, 7.3 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, ओवरऑल 1.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओवरऑल है। सो दैट विल एक्ट एज सपोर्ट 3 फॉर दिस ऑप्शन चेन सीरीज। पुट साइड कॉल साइड में हम देखते हैं जरा बियर्स ने किस टाइप की पोजीशन बनाई, तो 13,700 पे अभी भी आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, ऑल्दो इसके नीचे के लेवल पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है हमको यहाँ पे, वो नेचुरल भी है, थोड़ा बियर्स का कॉन्फिडेंस टूट रहा है एज ऑफ नाउ, एंड वी आर रेगुलरली सीइंग कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, जो भी इन द मनी की स्ट्राइक्स हैं वहां पे, राइट? एंड ऑफ कोर्स 13,750 कैन टर्न आउट टू बी potential resistance, but at this point of time खाली 3.59 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट हुए और ओवरऑल 500,000 से कम है। 13,800 would turn out to be our resistance one. यहाँ पे 6.6 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हैं और 1.2 मिलियन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 13,900 would turn out to be our R2, जहाँ पे कि 1.0 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अच्छी खासी आज की भी मोर देन 500,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। बट 14,000 seems to be the strong level, rather strongest most, जहाँ पे कि 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आज फ्रेश आए हैं, ओवरऑल 2.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी है, और ये देखने से क्लियर हो रहा है कि लाइक बियर्स आर नाउ क्लियर कि बॉस मार्केट 14,000 तक भी जा सकती है। दैट्स वेयर दे रोट calls at 14,000. So lower side में हमको 13,500 maximum open दिखा था, right? तो upper side में 14,000
1000 का, सो बड़ी ब्रॉड रेंज है ये ऑप्शन चेन के बेसिस पे। नाउ हमने जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखा था वो देखा था 13,600 से 13,900 का। इसका पीसीआर है फ्रेंड्स 1.24, राइट। सो ये माइल्डली बुलिश पीसीआर है, और आपको ये कल का हमारा पीसीआर था 1.33, माइल्डली बुलिश ही था। एंड वी आल्सो सॉ दैट ऑल्दो निफ्टी मूव्ड मच हायर, बट सेटलमेंट जो हुई है वो सिर्फ 56-60 पॉइंट के बीच में सेटलमेंट हो रही है। इनफैक्ट 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट आजकल मूव करती है, बट जो क्लोजिंग होती है वो 30-40-50 पॉइंट के गेन के अंदर अंदर हो जाती है। वैसे आज का 58 पॉइंट का गेन था, राइट। सो ये एक ऑप्शन चेन का डेटा है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो फ्रेंड्स 30,500, 30,000 लोअर साइड में दिख रहा है, जबकि अपर साइड में 31,500, 1.13 का पीसीआर रेशियो है वहां पे। सो दैट शोज लाइक पॉसिबली 30,500 से 31,500 की रेंज बैंक निफ्टी में विद माइल्ड बुलिशनेस दिखाई दे रही है। अगर हम प्रोविजनल डेटा की बात करें फ्रेंड्स, आज एफआईज नेट बायर थे, 2,355 करोड़ की नेट बाइंग की कैश इक्विटी मार्केट में, और डीआईज ऑफ कोर्स नेट सेलर थे, 2,492 करोड़ की उन्होंने सेल किया। डीआईज कौन है? म्यूचुअल फंड वाले हैं, और उनके अंडर उनके ऊपर काफी प्रेशर है रिडम्पशन का, राइट। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। एंड ओवरऑल अगर हम दिसंबर की बात करें तो FIs had been net buyers with a 36,000 crore, while as FIs were net buyer with a 36,000 crore, while SDIs were net sellers with a 48,000 crore. My apologies, 27,226 crore. 48,000 crore लास्ट मंथ में DIs ने था नवंबर के मंथ में, जबकि नवंबर के मंथ में FIs ने बाई किया था almost 65,317 crore. So on an average आप देखेंगे FIs are net buyers with a 2,500 to 3,000 on an average per day, while SDIs are net sellers around 2,000 crore rupees per day, right? And FIs की हमारे मार्केट की रखी हुई है, राइट। RSI फ्रेंड्स 81 का है, एंड which is of course in overbought zone, but at the same time showing bullish strength. मार्केट ओवरबॉट जोन में है विद द स्टॉकेस्टिक्स एट 91 एंड 97 इन डेली एंड वीकली चार्ट्स रेस्पेक्टिवली। केयरफुल रहें, मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकती है, या रेंज में कभी भी जा सकती है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ये हफ्ते में ऑलमोस्ट लास्ट हफ्ते और ये हफ्ते में 5 दिन तो यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेशन थी, जबकि बैंक निफ्टी तो अभी भी कंसोलिडेशन के जोन से बाहर नहीं आ पाई है, राइट। सो do not expect market to be one way traveling upside, right? And as long as 15,500 के ऊपर है market friends, you can expect the market to be bullish, touching towards 14,000, and as long as Bank Nifty is above 30,000, you would see 32,600 is our Bank Nifty's upper side target, or sentiments bullish है. Now we'll look at international markets such that we can assess कि हमारी मार्केट में क्या इंटरनेशनल मार्केट से सिंक्रोनाइजेशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो डेक्स जर्मनी एंड FTSE लंदन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो डेक्स जर्मनी में ब्रेकआउट हमने देखा था, FTSE में भी हमने एक बुलिश बायस देखा था काफी टाइम से, एंड दिस ऑलमोस्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी video of mine, right? Similarly, in S&P 500 as well as Dow Jones के फ्यूचर के चार्ट में हमने देखा कि बुलिश ब्रेकआउट्स हैं. So that's what has been playing definitely in our markets as well. Now, the charts might be taking some time to open up. I'm sure you can open up the charts at your end of these 4 markets, which are mainly governing or rather representing majority of the markets internationally, right? So इनका ध्यान रखें फ्रेंड्स, एंड जो लेवल मैंने दिए हैं वो लेवल को आप मॉनिटर करें इंट्राडे ट्रेड के लिए, which will definitely help you in gauging the kind of momentum in the मार्केट. एंड अगर आप मार्केट के मोमेंटम के साथ में चलेंगे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाई देंगे मार्केट में, एंड यू वुड बी एबल टू मेक सम प्रॉफिट्स इन दैट, राइट. एंड अगर हम
1 minute, friends. It is taking some time for some or other reason to open up the charts. Let me open this. Give me a minute. Right. No clues about why the charts have suddenly stopped functioning in the evening. Sometimes we also witness, there is a breakdown in investing.com. मेंटेनेंस मोड में चला जाता है. This could be that occasion possibly. I hope चार्ट एक बार खुल जाए ताकि आपको मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज बता पाऊं. राइट. तो जैसे हमने बात किया था कि एट अ हायर लेवल मार्केट को अगर आप देखेंगे जनरली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी क्या कर रही है, गैप अप स्टार्ट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड लोअर लेवल पे आके बाइंग चालू हो जाती है. राइट. दैट्स व्हाट वी हैव सीन एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन giving in my commentaries almost every day. So let us say अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 15-20 मिनट्स में मार्केट को ऑब्जर्व करें फ्रेंड्स एंड कोई जल्दबाजी ना करें ट्रेड करने की. राइट. अगर लेट्स से 13,800 या 13,850 पे मार्केट स्टार्ट होती है तो दैट कुड टर्न आउट टू बी योर अपॉर्चुनिटी फॉर लोअर साइड ऑफ व्हाट ऑफ 13,700 तक की या 13,650 तक की. और अगर मार्केट लोअर साइड में स्टार्ट होती है से 13,650 पे तो इन सच अ केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो लॉन्ग. बट मार्केट को पहले यहाँ पे स्टेबल होने दें. पहले एक ओपनिंग रेंज कैंडल को स्टेबल होने दें और उसके बाद में ही मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करें. मार्केट इज राइट नाउ इन ओवरबॉट जोन में. अक्सर ऑल्दो सेंटिमेंट्स आर bullish, but there is a fear also, right? Fear of large scale profit booking and especially December के मंथ में FIs क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज में जाते हैं तो सेकंड थर्ड वीक में उनका ये प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रोग्राम चालू हो जाता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर एंड्स एट दिसंबर एंड एट ईयर एंड दे आल्सो हैव टू क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड शो सम प्रॉफिट टू देयर क्लाइंट्स. ये भी एक रीजन होता है. तो इस चीज का भी थोड़ा ख्याल रखें. Now let us say अगर 13,000 let me see whether I can open this chart in a smaller time frame. So then in that case possibly chart थोड़ा slow खुल रहा है friends. तो देखता हूँ मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में खुलते तो अदरवाइज ये आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी. राइट. Let me, so there is a breakdown. Right, let me deal with it. Okay, so let me rather take it on a daily chart only क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये चार्ट्स नहीं खुल रहे हैं अभी, मे बी मेंटेनेंस चालू है इनका. तो अगर नाउ बैंक निफ्टी के लिए कैसे देखेंगे फ्रेंड्स? बैंक निफ्टी के लिए देखें अगर बैंक निफ्टी 30,945 के ऊपर जाती है, yes you can take a long trade. and अगर 30,650 नीचे जाती है तो आप शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट टारगेट्स which I have already discussed as a support or resistance levels respectively. right. अपर साइड में आपको रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे और डाउन साइड में आपको सपोर्ट लेवल मिलेंगे. राइट. तो ये एक चीज का ध्यान रखें. और लेट मी सी इफ आई कैन टेल यू कि नो ट्रेडिंग जोन क्या हो सकता है. या आप जब भी मार्केट स्टार्ट होती है ओपनिंग रेंज कैंडल देखें और ओपनिंग रेंज कैंडल का ब्रेकआउट देखें. अगर अपसाइड में होता है एंड मार्केट सस्टेन करती है वहां पे 15-20 मिनट्स के से ज्यादा तो इन दैट केस यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड ऑन अपर साइड. बट अपर साइड में ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ये देखें कि 30,950 के ऊपर ही आप अपर साइड की ट्रेड को इनिशिएट करें और शॉर्ट करना है तो 30,650 के नीचे ही ट्रेड को शॉर्ट करने की कोशिश करें. सो दैट शुड बी योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. और chill out for time being. You can sell calls as well as put as long as market is in consolidation zone. but अगर आप ऑप्शन की सेलिंग कर रहे हैं या फ्यूचर की सेलिंग कर रहे हैं तो उनको हेज करना ना भूलें रिस्पेक्टिव पुट और कॉल से, जो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए. अगर आपको ये डेटा रीड करने में कोई चैलेंजेस आ रहा है तो वी ऑल्सो हैव सर्टेन
डेटा एनालिसिस वीडियोस। यहाँ पे 3 वीडियोस हैं फ्रेंड जो आपको हेल्प करेंगे ऑप्शन चेन डेटा रीड करने में, या दूसरे जो पीसीआर का डेटा होने दें, या स्टॉक के फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट का डेटा होने दें, वो आपको ये यहाँ से मदद मिल जाएगी। एंट्री एग्जिट कैसे लेनी, उसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है क्लासिकल एंट्री एग्जिट सेटअप की, एंड हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। देयर आर सर्टेन वीडियोस व्हिच कैन हेल्प यू टू बिकम अ प्रो ट्रेडर, राइट। सो मार्केट की रेंज हमारी फ्राइडे के लिए फ्रेंड्स 13,600 से 13,900 की निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 30,500 से 31,500 की है। मार्केट कंसोलिडेशन करेक्शन के फेज में जा सकता है, एज लॉन्ग एज अप मूव चल रहा है। आप लॉन्ग है तो लॉन्ग बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एज ऑफ नाउ यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स आर इन पॉजिटिव मोड, सो उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट में डेफिनेटली होएगा, राइट। हेजिंग योर पोर्टफोलियो, इफ यू आर इन प्रॉफिट एंड आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो उसको हेज करना स्टार्ट कर दें। If you do not know how to hedge your portfolio, do write size of your portfolio in the comment box, and I'll guide you in how to hedge your portfolio, right? कि कितने कौन से कॉल या पुट बेच के या खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो को hedge कर सकते हैं। I'll definitely let you know that part if you write in the comment box. And intraday traders, definitely you should watch option chain data, because that gives you instant mood of bulls, and apart from looking at India Wix and USD INR. India Wix of now एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, cool है, that's good for the market, right? And do trade with only stop loss and trailing stop losses. अगर आप profit में हैं, keep on booking your profits. Nobody has ever become poorer by booking the profits. Friends, with this analysis, I hope you are able to navigate through the market confidently and profitably. Thank you very much for watching YouTube. You get latest information when you subscribe to our YouTube channel and press this bell icon, right? So don't forget to do that, and be generous to share these videos with your friends and trading communities. We have created these videos for you only, so do use them to learn the stock market and spread good words about how others can also learn from professional trading and investing, right? Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.